Ladies and gentlemen, now we are moving towards the first session of this training program, and we have Professor Dr. Nasser Mahmood. Dr. Nasser Mahmood will conduct the first session, and I would introduce him first. Professor Dr. Nasser Mahmood did his PhD in educational psychology from Tokyo, Japan. He is also a postdoc fellow of University of Leeds, UK. Currently, he is serving as Dean Faculty of Education at Allama Iqbal Open University, Islamabad. He has over 30 years teaching learning experience and conducted several training workshops for teachers at different levels. Dr. Nasser has a number of research publications, and he also conducted a number of research projects. Dr. Saab, over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Thank you, Asif Saab, and thank you, Dr. Fazil Saab, for a very elaborative introduction to the scope of this training. As he said, I hope people will find it useful for them during coming days, as we are already now late start this session. So I'll try to keep it brief and we'll try to complete it in time. The point we'll be talking today is basically learners' psychology. In other words, the students' psychology. And we'll be focusing on a couple of things which helps us in understanding our students. Now, first is that how good a teacher can I be depends upon how well I understand my students. And that's not something very novel or new or something. We all understand it, that the people to whom I teach, my quality of teaching, my effectiveness of teaching reasonably is dependent on how well I know to whom I am teaching. And it's in my practice, it always, even if I teach them the same thing, who is my audience, it changes many things in my way of teaching. So that will be our topic of discussion. When I say I should understand my students, so what does it actually means to us? What should I understand, or what should I try to know about my students, so that I can say that I understand them? This is our second point of discussion today. What does it take to understand psychology of student? When I say I understand my students, so what actually I'm looking into? And then why is it important? If I don't understand my students, what difference it makes? In how many ways this can help me during my teaching learning process. So these are 3 points we'll be primarily talking about. Whenever we talk about psychological development in terms of students, so we're talking about 3 kinds of their development. One is cognitive development, psychosocial development, and moral development. These are the 3 things we'll be talking about. Because colleges, universities, or other educational institutions, they're all meant to develop the whole personality, overall personality of a student. It's not only about teaching them books. It's not only about teaching them content. An institution, an educational institution of any level, basically is meant to teach them, obviously, subjects, contents, whatever. Alongside that, we also teach them how to live with others, how to live in a community, how to work with other people, how to collaborate, how to help out others. And then the moral grounds of things, whenever they get involved in any kind of action,
social, cultural, or religious, whatever kind of action they get into, what are the basic moral standards of it, which we want them to comply to or to observe when they are doing such activity. So the three kind of developments we'll be talking about, and this is what, when I say I understand my students, actually I understand them from these three perspectives. Okay? So we'll talk about them one by one. Achha. The cognitive development part of it is, cognition is typically a word which means mental, intellectual. So it is mainly about intellectual development. And there are 4 stages described by Jean Piaget. Piaget was a psychologist, and he described intellectual development of human being by age into 4 stages of life. He goes by age, right from the birth to adulthood, and then he divides that whole period of time into 4 different stages. And these stages are actually sync with the development of human mind, intellectual ability of humans being as it grows with the passing age. So it has got 4 stages. First is sensory motor stage, which is from birth to 2 years of age. And then from 2 years onward to 6 years, for next 4 years, and you can say, they label it as pre-operational stage, then concrete operational stage from 12 years of age, and beyond 12 years of age, it is called formal operational stage. Selection of title for each stage is quite self-elaborative. Our focus for the day is on formal operational level, because students will be coming to us when they are 12 plus years of age, when they join us in colleges. But it's important to understand formal operational stage in the context of previous 3 stages. So I'll take just a couple of minutes to talk about them, and then we'll focus upon formal operational stage. In fact, it says sensory motor. 2 words makes it: senses, and motor mean physical movements. So the only tools available to a child till the age of 2 years are the 5 senses God has given us, and the physical movements we do, bodily movements we do, are the source of learning for human being, and a very simplest of its explanations. The first thing through which our mind receives information from environment, from surroundings, are our 5 senses. And from the day of birth, rather than call it conception, pre-birth period as well, we start receiving things through our senses, and development of these senses is quite fast after we take birth. After we come into this world, all 5 senses are not fully developed at that time, but with the passage of time, in a very short period of time, like 6 months from the birth, almost all of them become fully operational. And then alongside this, a connection of senses, brain, and physical movement makes a combination which we call as senses helps you to get information from the environment. Your nervous system in the body, nerves, they respond to the information you receive, and on the basis of that response, that sensation in nerves, your bodily movements occur.
in correspondence to that. So that's the only way of looking at things during that time. The child experiences every object, every material, every non-physical thing in their surroundings through this mechanism. Then after this, when we grow older, relatively older, from 2 years onward to 6 years of age, that is pre-operational. It means before being able to operate. Now, what we mean by operations here, when we say operational, because the next one is concrete operational. So we need to understand this word operational. Operational here means functions of different things. Functions of whatever we observe, whatever comes to us as knowledge, how it works. So pre-operational mean the child uses symbols, words, images to represent objects, but does not reason logically. Pre-operation this is called pre-operation because the child is yet to know about reasoning logically about whatever they see around them. Okay, this picture is getting slow जी, मैं इसको बंद करता हूँ ताकि थोड़ी मेरी शायद आवाज वाला मामला बेहतर हो जाएगा, इससे थोड़ा स्टिक करना पड़ता है जी. Now this, it means that the child can explain things by using words, has acquired language by that time, so they can explain whatever they are they see around them, as they see around them, as they understand it, so they can express it in the form of words and graphics, images, like that. In fact, language itself, when it's written somewhere, is images because it does not contain any meaning. Language expression, your write-up does not have any meaning. We assign meaning to them. So it's a kind of images or symbols which we use. So, but whatever explanation a child can make at that age is not based on the logic of that thing. It is based on the appearance of that thing. It is based on the way it looks at that point of time. And just to give you an example of it, a child looking at me or you from the front side will not be able to understand or say anything about our back side of our body, which is not visible to them. For them, for example, अगर हम यूं कहते हैं, if you place a telephone, mobile phone in front on a table and ask them कि क्या नजर आ रहा है, so they can only tell you whatever side they are looking at. उसकी दूसरी साइड पे क्या है वो आप बताने की कोशिश करेंगे तो they will not understand it. They can only understand what is in front of them. And once they lose the sight of the front thing, जो उन्हें नजर आ रही है, if they lose the sight of that, और वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो they will not be able to explain the previous one. जो उस वक्त नजर आ रही होगी वो उसको देख रहे होंगे. एक बच्चा सिर्फ उन चीजों की वजाहत कर सकता है जो उसके नजर के सामने. Once they go off, वो नहीं कर सकता. But when it reaches concrete operational stage after the age of 7 years, generally speaking, so then they can think logically. जो चीज वो जिस चीज को देखते हैं, they try to find out, or at least they try to figure out if it works, but how it works, why it is the way it is, क्यों चीजें ऐसी हैं जैसी नजर आती हैं, इनके पीछे वजह क्या होती है, अगर ये शक्ल में ना हो तो क्या गड़बड़ हो जाती है इससे. So they try to do concrete operations logically. Concrete operational means all those operations which have physical existence. इसका मतलब है they can understand the logic of all those phenomena which are physically present around us. In order to understand that,
इस स्टेज पे आप देखिए, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. It's not visible, it's not concrete. They will not be able to understand atomic structure because atom is not visible to them. They will only be able to, they will not be able to explain magnetism because magnetic rays are not visible to them. सिर्फ उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिनका फिजिकल वजूद होता है, लेकिन वो उनको लॉजिकली रीजन कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं, उनके होने का वजह बता सकते हैं. नाउ देन कम्स द लास्ट स्टेज ऑफ आवर मेंटल डेवलपमेंट, विच इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. फॉर्मल ऑपरेशन मींस अब एडिशन ये होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकता है. लॉजिकली तो पहले ही सोच सकता था पिछली स्टेज पे भी, बट व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो नाउ दे कैन थिंक logically about abstract things as well. दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर लें आप उनसे, एटम के स्ट्रक्चर की बात कर लें, कॉस्मोस की बात कर लें, कोई स्पिरिचुअल किस्म की गुफ्तगू कर लें, they are able to understand it. So when the student comes to us in universities or colleges, so उस वक्त their mind is fully grown up in the sense कि वो इस तरह की हर कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको समझना चाहें तो that will be very simple for us कि अगर आप अपने इन एज ग्रुप के साथ अपना जो हमने करिकुलम बनाया है, अगर आप उसको अलाइन करके देखें तो आपको ये अलाइनमेंट नज़र आएगी कि द काइंड ऑफ एज ग्रुप वी आर टॉकिंग अबाउट, उसकी टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट्स हम शामिल करते हैं वो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट हम 6ठी-7वीं में आके मैग्नेटिक रेज का, मैग्नेट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हमने बताते हैं, बट हाउ डू मैग्नेटिक रेज वर्क ये हम उनको आके शुरू करते हैं कोई 5वीं क्लास के अंदर, 6ठी-7वीं क्लास के अंदर, 6th-7th में आके, और फिर 9th-10th में बल्कि 11th-12th में बल्कि पहुंचते हैं तो देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. उससे पहले नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की रीजनिंग लेट समझ आती है. सो ये जी पहला एंगल है फ्रॉम विच आई नीड टू understand when I say I understand the psychology of my student, my learner, so it means I understand their stage of cognitive development and the capacity of their mind to work with the information they receive from their surrounding, to work with the knowledge which is surrounding them. तो मुझे उसी तरह का नॉलेज उसी तरह की शक्ल में सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है जिसको वो समझ पाते हैं. So this is the first angle from which I need to understand my student. ये जो उसकी formal operational stage है, इसके अंदर specifically क्या चीजें करनी चाहिए या क्या होती हैं. देखिए, मेटाकॉग्निशन स्टूडेंट कर सकता है. जब मैंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, तो ये 4 चीजें लिखी हुई हैं, बेसिकली दे आर ऑल रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स. प्रोपोर्शनल रीजनिंग कर सकता है, मींस दे आर एबल टू अंडरस्टैंड. अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कहूँ तो सूरज को कागज पे ड्रॉ करना हो तो वो समझ सकते हैं. आप किसी बड़ी पीस ऑफ लैंड का नक्शा बनाएं कागज के ऊपर तो वो प्रोपोर्शनल अंडरस्टैंडिंग उन्हें होती है कि एनीथिंग व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द पेज एक्चुअली ये कितनी होगी. वो जो उनका प्रोपोर्शनेट साइजेस हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग आराम से बना सकते हैं. इससे पिछली स्टेज तक सिर्फ ये होता है कि जब मैं उससे कहता हूँ कि कमरा बनाना है तो वो कमरे की पूरी साइज के मुताबिक जब उसको नहीं देखता तो उसे उसकी समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ पे वो उसको प्रोपोर्शनेटली समझते. इसका मतलब रेशियोज, मल्टीपल्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है ये वो सीख जाता है. उसे प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आ जाती है. प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग समथिंग. अभी कुछ हो रहा है
लेकिन अगर इसको स्पेकुलेट करना हो अगले 10 सालों के लिए तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्शंस, कि आज आबादी इतनी है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, आज हम कोई चीज इतनी बनाते हैं, अगर इसी स्पीड पे बनाते रहे तो थोड़े सालों बाद कितनी बना लेंगे। ये वाली अंडरस्टैंडिंग उसको आ जाती है कि जो आपके प्रिडिक्शंस हैं उनके मुतालिक वो समझ सकता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग वो पिछली स्टेज पे सीख लेता है, लेकिन हाइपोथेटिक डिडक्शंस जो होते हैं ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं आज, लेकिन बाय रीजन यू कैन आर्गू के ये हो जाएंगी या ये हो सकती हैं या इनके होने के चांसेस कितने हैं, वो इसको करेक्टली गेस करने की पोजीशन में होते हैं। एंड मेटाकॉग्निशन मीन थिंकिंग अबाउट योर ओन वे ऑफ थिंकिंग। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स होती हैं कि उसके अंदर रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत भी होती है जी। सो ये 4 चीजें मेरे रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत से मुराद ये है कि मैं कोई एक्शन करता हूँ तो मैं अलहदा बैठ के गौर कर सकता हूँ कि इसको अगर मैं सोच के और करता तो इसमें क्या क्या करेक्ट होता, किन चीज़ों को बदल लेता, किन चीज़ों को ऐसे ही कंटिन्यू करता। अपने सोच के अमल के बारे में सोच सकना कि वो ठीक था कि नहीं था। सो आज के ज़माने में उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। सो मेटाकॉग्निशन जो है ये भी उसको स्टेज पे आ जाती है। वी एज ए टीचर इफ वी अंडरस्टैंड ऑल दैट, तो मैं अपनी टीचिंग के दौरान उसकी इन सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड व्हेन आई से स्टूडेंट हैज डेवलप्ड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो पिछली 3 तो ऑब्वियसली उसके अंदर हैं, उनसे तो वो गुजर के आया हुआ है ना। ये तो स्टेज मॉडल्स जितने भी, ये वाला भी वैसे अगला भी, स्टेज मॉडल्स जो हैं ये सीक्वेंशियल है। पिछली चीज होती है तो अगला लेवल पे आप पहुंचते हैं। तो ये एक तरीका उनको अंडरस्टैंड करने का है, ये इंटेलेक्चुअल तरीके से, कॉग्निटिव जिसको मैंने कहा था। दूसरा मैंने स्टूडेंट को समझने के लिए जो दूसरा हिस्सा जरूरी कहा था वो साइको सोशल डेवलपमेंट का है। सोशल डेवलपमेंट, अब जिसको आप दूसरे लफ्जों में EQ का नाम आपने सुना होगा। ये पिछला जो कंपोनेंट सारा था ना जी, ये इंटेलिजेंस कोशेंट से मुतल्लिक था, ये कंटेंट से रिलेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट सारी। सोशल डेवलपमेंट ये है कि हाउ टू लिव विद अदर्स, ये सीखना। अच्छा, इसको सीखने की जो स्टेजेस हैं, ये हमारे पास एक एरिक्सन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने इसको भी स्टेज मॉडल पे बनाया। Stage model means by age, but not in 4 stages, but in 8 stages. 8 stages में उसने इसको डिवाइड कर दिया। इन्फेंसी, पैदाइश से 1 साल पहली स्टेज, और इस स्टेज में क्या होता है, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। डिपेंडेंट एज है ये बच्चे की, बच्चे को इस एज में कोई भी काम वो खुद से नहीं कर सकता, सारे काम हमने उसको करके देने होते हैं। उसके खाने की ज़रूरत, उसके वॉशरूम की ज़रूरत, उसके साथ खेलना, उसके इमोशंस को समझना, उसके साइंस को अंडरस्टैंड करना, उसकी इनकम्प्लीट साउंड्स को समझना, ये स्टेज के अंदर होता है। और इसमें अगर केयर गिवर जो है, मदर हो, फादर हो, टीचर हो, कोई भी हो, जो भी उसको डील करता है, अगर वो उसकी साइंस को, उसके एक्सप्रेशंस को समझ के करेक्टली रिस्पॉन्स करता है, तो उस बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है। जब भी वो रोता है तो मुझे उसके बहुत सारी डिमांड्स का ताल्लुक एक ही साइन से है, और वो है रोना। वो तकलीफ में भी रोता है, भूख लगेगी तो रोएगा, कुछ करवाना आपसे मनवाना चाहता है तो रोता है। अब उसका साइन एक ही है, उस साइन से उसकी डिमांड डिफरेंट है। इस बात को जितना बेहतर मैं समझ लूंगा एज केयर गिवर, उतना उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, ट्रस्ट अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। और अगर मैं ये नहीं समझूंगा
उसके रोने का मतलब वो किसी और वजह से और मैं उसके रिजल्ट में करता कुछ और हूं, तो दैट डेवलप्स मिसट्रस्ट। इसकी जो एसेंस है, जो वर्च्यू है, इस बात की वैल्यू जो है लाइफ में, वो है लर्निंग होप। थिंग्स विल बी डन, whatever you want, there is someone to help you out in that, who understands you। तो इसका आउटकम जो है, अगर किसी बच्चे को इस एज में ठीक तरीके से सोशली सपोर्ट किया जाए तो उसके अंदर होप डेवलप होती है। वो अपनी इंटरडिपेंडेंस के साथ मुतमईन रहता है कि मैं जिस पे डिपेंड करता हूँ उसका उस पर ट्रस्ट डेवलप होता है कि जिस पे मैं डिपेंडेंट हूँ वो मुझे समझता है। दूसरा हिस्सा इसका शुरू होता है फ्रॉम एज 1 to 3, जिसको हम चाइल्डहुड कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड है। अच्छा, नाउ बाय दिस एज उनकी लैंग्वेज भी किसी हद तक डेवलप हो चुकी होती है, थोड़ी बहुत। उसकी रिपोजिटरी बड़ी नहीं होती, बट दे कैन स्पीक, दे कैन मूव एज वेल, फिजिकली मूव भी कर सकते हैं। अब वो आपकी डिपेंडेंस से निकलना शुरू हो जाता है, वो अपने कामों को खुद करना चाहता है, ऑटोनॉमी चाहिए। अगर मैं उसको ये यकीन दिला सकूं कि वो चीजें जो वो करना चाहता है वो कर सकता है और ठीक करता है। मिसाल के तौर पे बेड से उतरना, चीजों को छेड़ना, उनके साथ खेलना, आपके साथ वो वाले काम करके दिखाना जो आप उसके सामने करते हैं। अगर आप उसको इस पीरियड में ये सोशल सपोर्ट दे सकें कि वो जिस चीज को इंडिपेंडेंटली करना चाहता है वो उसको ठीक तरीके से कर पाए, और अगर गलत हो जाए आपके ख्याल में तो आप उसको इस पे नाराज ना हो, कोई बुरा एक्सप्रेशन ना दें, बल्कि उसके उस फेलियर को भी सक्सेस की शक्ल दे दें। तो उसके अंदर जो सिफ्त पैदा होती है वो ऑटोनॉमी है, वो सोशल ऑटोनॉमी सीखता है। और अगर ये आप उसको मना करेंगे या किसी चीज को छेड़ने से रोकेंगे, कोई काम नहीं करने देंगे जो वो करने लगा है, तो उसके अंदर शेम, जो इसका ऑपोजिट वर्ड है, हेजिटेशन पैदा हो जाती है। ठीक है, दिस इज द पीरियड वेयर चाइल्ड डेवलप्स विल इन देम। अगर मेरे पास यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं जिनको मैं फील करता हूं कि वो किसी बात में भी सामने नहीं आना चाहते, उनके अंदर एक फियर मौजूद होता है फेलियर का, तो इसका मतलब है कि कहीं सोशल डेवलपमेंट के अंदर पीछे शुरू में कुछ चीज रह गई उनके अंदर खराब, जिसकी वजह से आज वो ऐसे। तो मुझे उस पॉइंट को पिक करके बिल्ड करना है उसके अंदर, अपने क्लासरूम के अंदर। आप इन सारी बातों को देखेंगे ना जी, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने वाली, तो आप देखेंगे कि टीचर के पास गुस्सा, नाराजगी, मायूसी, ये टीचर के ट्रेड्स में नहीं होता। टीचर ये अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी स्टूडेंट की पुअर परफॉर्मेंस से एजिटेट नहीं हो सकता। टीचर के अंदर ईगो नहीं होती, क्योंकि मुझे जो चीजें बिल्ड करनी है वो ये जितने मैंने नाम लिए ये उसके अगेंस्ट है। मुझे ये बातें सिखानी हैं, मेरे अपने अंदर नहीं होनी है, वरना मैं टीचर नहीं बन सकता। इसके बाद अगली स्टेज देखें, प्ले की एज। प्ले एज यानी प्ले एज इन द सेंस के प्ले एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग, एज ए फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन। 3 से 6 साल
यानी स्कूल जाने के करीब पहुंचने तक की एज है, जिसको आप प्री स्कूल कह लीजिए। 3 साल की उम्र में आप बच्चों को किंडरगार्टन भेजना शुरू कर देते हैं। ये एज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की। यू नीड टू टीच देम द पर्पस ऑफ वट एवर दे डू इन लाइफ। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप सिखाना चाहते हैं, आप ह्यूमर है, एम्पैथी है, ठीक है, रेजिलियंस है, टफनेस है लाइफ की, ये चीजें सीखने का काम। अच्छा, इनिशिएटिव का मतलब यहाँ ये होता है कि सक्सेस इन वट एवर इंडेवर यू टेक अप। एक तो ये कि अब मुझे किसी की तरफ देख के शुरू नहीं करना। इनिशिएटिव ये होता है कि आप इस उम्र में कोई खिलौना ला के देते हैं ना, तो वो खिलौने से खेलने की बजाय अक्सर बच्चे उसको खोलना, तोड़ना, डिसेंबल करना, ये शौक रखते हैं। आप जूते पहनने होंगे ना, आप उसके सामने रखेंगे, वो नहीं चाहेगा कि आप जूता पकड़ के उसके पाँव में पहनाएं। आप जूते रख दें, वो खुद चाहेगा कि वो उसको पहने, भले उल्टा पहने, सीधा पहने, लेकिन वो खुद करना चाहेगा। एक आम सी एग्जांपल ले देखें, अगर यूजुअली इस उम्र में आप शूज दें ना जी, तो बच्चे उलट पहनते हैं, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में पहनते हैं। इसको मैं उन्हें मना कर सकता हूँ, इससे ये क्या, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करो, ये भी कर सकता हूँ। और मैं शूज की सिलेक्शन ऐसी कर सकता हूँ जिसमें राइट लेफ्ट मैटर ना करता हो, शेप वाइज, इस तरह के। एंड टू गिव देम अ सेंस कि वॉट एवर दे वॉन्ट टू यूज एट एज इनिशिएटिव इन देयर लाइफ, दे कैन डू इट वेल। अगर मैं ये नहीं सिखाऊंगा, ये वाली सोशल स्किल नहीं आएगी, तो गिल्ट की फीलिंग आएगी। वो ये है कि they will try to hide themselves with the fear that whatever they will do will go wrong. They will hide themselves, they will not do it in front of you, और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उनमें चीज डेवलप हुई या नहीं हुई। Okay. This is time where we teach them we start teaching them how to deal with others, how to be good with others, how to share. आप उसको कोई चीज देते हैं तो आप कहते हैं अच्छा ये फलां को भी दो, फलां को भी दो, उसको भी दो, सारे मिलके करो, टीम वर्क सिखाना। दिस इज द एज वेयर वी डू इट। एंड देन वी गो टू स्कूल एज एंड एडोलेसेंस एज। स्कूल एज आ जाती है जिसके अंदर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती है। आप अपने लिए एक पाथ का तयन करते हैं। यू डिसाइड what kind of people will be your friends. You decide the limits of your friendship. You decide how to deal with elders. You start forming your personal opinion about different actions you do in your life. आप उसके लिए शेप होना शुरू हो जाते हैं कि किस तरह के लोगों से दोस्ती करेंगे, दोस्ती का मतलब क्या होता है, इसमें गिव एंड टेक किस चीज का नाम है, और आप ये रिलेशन सीखना शुरू कर देते हैं। अगर आपको इस तरह की सोशलाइजेशन में सपोर्ट ना दी जाए तो आप फिर आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर इन्फीरियरिटी आती है, दुनिया से अलग होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो कॉम्पिटेंस, बेसिकली कॉम्पिटेंस ऑफ डूइंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू, दिस इज द वर्च्यू ऑफ दैट स्टेज। कि मैं जो करना चाहता हूँ उसको करने के लिए मेरे अंदर कॉम्पिटेंस डेवलप होनी है, और उस कॉम्पिटेंस की डेवलपमेंट में आपने फ्रेंडशिप बनानी है। यू नीड टू टीच मी हाउ टू डिसाइड अबाउट फ्रेंडशिप, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ फ्रेंडशिप, हाउ टू ऑपरेशनलाइज इट फॉर यू, ये चीजें उसके अंदर सिखाते हैं। फिर ये अगली स्टेज वो है जिसमें ये स्टूडेंट जो है वो मेरे पास आना शुरू हो जाते हैं। 12 से 19 साल वाली एज है, इस एज ग्रुप में जिसको एडोलेसेंस कहते हैं, इसमें मेरे पास स्टूडेंट आते हैं। अब देखिए, व्हेन दे कम टू कॉलेज
the social development stage at which they are is development of identity, disassociating themselves from the parents, from the teachers, जिसको हम अक्सर औकात बहुत रिबिलियंस के नाम से, रिबिलियन रवैये के नाम से जानते हैं कि जी अकड़ बहुत है, बात सुननी नहीं है। असल में वो किस स्ट्रगल में होता है स्टूडेंट, वो अब मैं आप इससे गुजर चुके हैं। हम अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए हम हर उस रिश्ते से डिसएसोसिएट होने की कोशिश करते हैं जिस पे हम डिपेंडेंट रहे हों पहले। हमें लगता है कि अब मुझे इस डिपेंडेंस से जान छुड़ानी है और दुनिया मुझे मेरी हैसियत से जानना शुरू करे, और मुझे ये वाली स्पेस मिलती है फ्रेंड्स में। सो आप देखिए इस एज में फ्रेंडशिप्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाती हैं, और बहन भाइयों का आपस में ताल्लुक, पेरेंट्स से ताल्लुक, टीचर से ताल्लुक थोड़ा फासले पे जाना शुरू हो जाता है, प्रायोरिटी बदलना शुरू हो जाती है। The idea behind is that they want to develop an identity. They want to decide which profession they want to go. They want to decide what kind of things are good for them. They want to decide at what time what they should be doing. वो ये सिर्फ सोचते नहीं, इन एक्शंस के जरिए अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं और इन एक्शंस को ऑपरेशनलाइज करते हैं, और जो उनके इस सिलसिले में हेल्प आउट नहीं करता उन्हें, वो उससे डिसएसोसिएशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन्हें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ को समझने की का दौर है ये। अपनी पसंद, अपनी चॉइस असर्ट करना शुरू करते हैं। अगर मैं इस दौर में स्टूडेंट को ये तमाम चीज़ें करेक्ट तरीके से जो उसने करनी ही है, सीखनी है, अगर मैं उसको करेक्ट तरीके से सीखने नहीं दूंगा और अपना आप असर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और फिर अब देखिए हमारे ये स्टूडेंट हमारे पास ही रहता है जब वो अडल्टहुड में आता है। 20 से 25 साल की उम्र भी तकरीबन इसके 22-23 साल की उम्र तक वो हमारे पास कॉलेजेस में होते हैं। इस ज़माने में ये दौर जो है ये इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इसके फीचर्स हैं। इंटीमेसी मीन्स दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर करियर, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद समवन जिसके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती हो। They start thinking about making a family. They start thinking about relationships. जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, एक रिलेशनशिप्स वो हैं जो बाय ब्लड मिलते हैं और आप उनको एक्सेप्ट किया। यहाँ पे उन रिलेशंस की डेवलपमेंट की गुफ्तगू है जो आपको बाय बर्थ नहीं मिलते, बाय ब्लड नहीं मिलते, आप खुद बनाते हैं। दोस्तियां हैं, लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन है, इसी तरह फ्रेंड्स के अंदर रिफाइनमेंट है, फ्रेंड्स के लेवल तय करना। अगर मैं इसके बारे में गाइड नहीं करता, जो कि हम अपने मुआशरे में बहुत कम करते हैं, तो नतीजतन ये होता है कि either they get hesitant in developing these things or they do it in a manner which is socially not acceptable. या जो कल परसों वाकया मीनार पाकिस्तान पे हुआ, इस तरह की पर्सनैलिटीज बन जाती हैं, या क्योंकि मैंने उन्हें गाइड ही नहीं किया कि मैं इस रिलेशनशिप की लेजिटिमेसी को मानता नहीं हूँ एज ए पेरेंट, एज ए मुआशरा। तो मैं जब इसकी लेजिटिमेसी का तयन करने का इख्तियार उनको नहीं देता, अपने पास रखता हूँ, तो वो फिर मुझसे छुप के बनाने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह से उनको अट्रैक्टिव लगता है वो उस तरह से करना शुरू। अगर मैं इसको तरीके से समझाना शुरू कर दूँ, बता दूँ, जो कि हमारी बहुत सारी फैमिलीज में होता है और वो उसको सीख लेते हैं। वो मेरे पास
को एजुकेशन में आते हैं, मैंने कभी आज तक को एजुकेशन में बिहेव करने के तरीके नहीं सिखाए, जिम्मेदारियां नहीं सिखाई क्या होती हैं, मना किया है हमेशा उनको इस बात से कि ये नहीं करना, विच इज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल इन द सोशल डेवलपमेंट, इट हैज टू हैपन, इट हैज टू हैपन। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे शेल्टर में रहे ये सारा कुछ, मैं किसी को इंडिपेंडेंटली ये करने की इख्तियार नहीं देना चाहता, एंड दैट मेक्स प्रॉब्लम, एंड देन इट गोज टू अडल्टहुड और ओल्ड एज। बाकी इसके हिस्से विल कम टू देम लेटर जी, अभी इतना ही। वो स्टेजेस अभी रेलिवेंट नहीं है, उसमें बस टाइम शॉर्ट, इसलिए मैं उनको आगे नहीं देखता। अगर आपको मजीद ये स्टेज, मेरे पास ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिस पे मैंने बात करनी थी, एडोलेसेंस है और अर्ली एडल्टहुड है। इस एज ग्रुप के बच्चे मेरे पास आते हैं जी ज्यादातर। इसके बाद ये मैंने उसी में से निकाल के लिखा है जो हमें रेलिवेंट देखना था। तीसरी जो डेवलपमेंट मैंने आपसे जिक्र किया था वो था जी मॉरल डेवलपमेंट लोगों की। मॉरल डेवलपमेंट जो है, इस पे कोहलबर्ग की जो था एक आदमी, इसने एक थी अपना इसी तरह का स्टेज मॉडल पेश किया था। 3 स्टेजेस इसने बताई कि इंसान मॉरली 3 स्टेजेस में डेवलप होता है, और अगेन ये भी एज बाउंड स्टेजेस हैं। प्री मॉरल यानी अभी उसे अंदाजा नहीं होता कि मॉरलिटीज क्या होती हैं, उससे पहले का जमाना, उसके दौरान मैं मॉरल ग्राउंड्स पे एक्शंस कैसे करता हूं, यानी वो बताया। फिर कन्वेंशनल पीरियड इसका नाम देता है, जो मुआशरे में होता है उसको दुरुस्त समझ के उसके मुताबिक कंप्लाई करना शुरू कर देना। और पोस्ट कन्वेंशनल तीसरा जो इसका हिस्सा होता है। पोस्ट कन्वेंशनल का मतलब है कि इंसान अपनी ज़ात से बियॉन्ड निकल के मॉरल वैल्यूज पे दुनिया के कामों को देखना शुरू करता है। इसने फिर हर स्टेज को आगे 2-2 हिस्सों में, प्री मॉरल को 2 हिस्सों में, कन्वेंशनल को 2 हिस्सों में और पोस्ट कन्वेंशनल को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया। जनरली स्पीकिंग अभी तक जितनी भी हमने स्टेजेस पढ़ी हैं, जो एज ब्रैकेट्स इन्होंने बताई हैं, द थिंग्स हैपन most of the time, the things happen within those age brackets जी। लेकिन it's very likely that sometime people, you can find people who go even beyond their age level as per given stages, but they're still not developed accordingly। जैसे सोशल डेवलपमेंट थी, तो जिनको हमने एडोलेसेंट्स कहा, बच्चे उस उम्र को पहुंच जाते हैं लेकिन उस लेवल की सोशल डेवलपमेंट नहीं होती। क्यों? कि वो जो उसका, मैंने आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, मसलन डेवलप नहीं होती। इस अगर देखिए इस उम्र में आके 12 से 19 साल की उम्र में आइडेंटिटी डेवलपमेंट नहीं होगी ना, तो नतीजे में कंफ्यूजन ऑटोमेटिक चीज है उसकी। सो अगर किसी की दुरुस्त माहौल में गाइडेंस की जाए, सपोर्ट दी जाए, जो कि मैंने, आपने, पेरेंट्स ने देनी है, तो ये चीजें डेवलप होती हैं जो पहले लिखी हुई हैं यहाँ। अगर नहीं करूंगा तो ये अगली चीजें डेवलप हो जाएंगी जिनको फिर करेक्ट करना मुश्किल होगा। यही कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी होता है, ये इसमें भी होता है। अब इसमें देखिए कि जो आखिर में 2 स्टेजेस हैं, ये हमारे एज ग्रुप में फॉल करती हैं। जो स्टूडेंट हमारे पास आता है टीन एज में होता है, सो ये टीन एजेस और एडल्टहुड में सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। इस हद तक की मॉरल डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। होती है नहीं होती है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। नहीं होती है तो इसका मतलब है इससे पीछे हम गड़बड़ करके आए हैं। स्टार्ट होता है ओबीडियंस पनिशमेंट मोटिव। शुरू में इंसान को चीजों की मॉरल वैल्यूज का, इंपॉर्टेंस का कोई नहीं पता होता। इन्फेंसी में, प्री स्कूल एज में, यानी आप कह लें कि 5 साल की उम्र से पहले बच्चा जो कुछ करता है वो किसी भी काम के गलत या सही होने का फैसला पनिशमेंट या रिवॉर्ड की बुनियाद पे करता है। उसको उसकी असल अफादियत का, उसको उसकी असल वैल्यू का कोई नहीं पता होता। बच्चों को आप कहते हैं
कि बच्ची हैं घर में तो खाना लगाने लगते हैं तो आप उनको सिंबॉलिकली चीज़ें प्लेटें रखने को इधर उधर करने को कहते हैं और वो करके खुश होती हैं, नॉट बिकॉज दे फील कि दिस इज समथिंग दे आर ऑब्लाइज्ड टू डू, जस्ट बिकॉज व्हेन दे डू इट पीपल अप्रिशिएट इट। जिस इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं वो उस पर खुश होकर उसको अप्रिशिएट करते हैं, एंड दैट्स ऑल एप्रिसिएशन है वो। कि आप किसी काम से मना करते हैं तो वो मना इसलिए नहीं हो जाते कि वो समझते हैं कि यार से मना होना उनके लिए अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें डर होता है कि इसकी सजा मिलेगी, बाद में आप पनिश करेंगे इस बात पे। उनके तमाम एक्शंस के पीछे जो उन एक्शंस के स्ट्रेंथन होने या वीकन होने की जो वजूहात हैं वो पनिशमेंट है, राइट और रॉन्ग नहीं है। लेकिन जब स्कूल एज में बच्चा पहुंच जाता है 5 years ऑनवर्ड या 6 years ऑनवर्ड, जिसको ये कहता तो अभी भी ये उसको स्टेज 1 ही है, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट का नाम देता है। अब बच्चों के अंदर कोई भी काम करने की जो ख्वाहिश है उसकी बुनियाद उनका ज़ाती फ़ायदा या नुकसान होना शुरू हो जाता है। पहले तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड था, अब वो देखते हैं पर्सनल इंटरेस्ट किस में है, मुझे बेनिफिट कैसे मिलेगा इस बात का। जिस चीज का उसको बेनिफिट मिलता है वो चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, अगर उसके लिए उसको लगता है उसके लिए बेनिफिशियल है तो वो करता है। अभी भी वो मॉरल ग्राउंड्स नहीं समझता, वो चीजों को जाती बुनियाद पे देखता है कि ये उसके फायदे में जा रही हैं या नहीं जा रही। ठीक है, मसलन वो रास्ते से चलते हुए गिरे हुए पैसे उठा लेगा और इसमें कुछ गलत नहीं समझता, क्योंकि वो पैसे उसके इंटरेस्ट की चीज़ हैं। वो ये कतन नहीं समझता कि ये जिसके हैं उसको मिलने चाहिए, मुझे पूछना चाहिए ये किसके गिरे हैं पैसे, नहीं, अगर मुझे मिल गया मेरे हैं। इस तरह के झूठ बोलना है तो वो सच बोलने को या झूठ बोलने को उनके मॉरल ग्राउंड्स पे नहीं देखता कि ज़रूरी है कि नहीं, देखता है कि ऐसा कर लेने से उसको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो दिस टू आर लेवल 1 ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। लेवल 2 में जाके अब उसे ये समझ आने लग जाती है कि झूठ बोलना बुरी बात है और सच बोलना अच्छी बात होती है, लेकिन वो उन तमाम चीज़ों को अच्छा कहता है जिनको मुआशरा अच्छा कहता है, और वो उन तमाम चीज़ों को बुरा कहता है जिनको मुआशरा बुरा कहता है। वो इस तरह से असेस नहीं करता। मिसाल को मैं एक टिपिकल सी मिसाल लूँ तो अगर आपका मुआशरा इनटॉलरेंस को अप्रिशिएट करता है तो वो उसको कन्फर्म करने की कोशिश करता है। क्यों? अगर वो ये बात नहीं सोच सकता कि इनटॉलरेंस इटसेल्फ इज अ गुड थिंग और बैड थिंग, लेकिन हाँ ऐसा किया जाए तो मेरा मुआशरे में मुकाम अच्छा हो जाता है, लोग मुझे अच्छा कहते हैं, तो लिहाजा वो ये करता जाएगा। सो गुड बॉय गुड गर्ल, ये उसका बेसिक इंटेंट है कि मुझे अच्छा समझा जाए, लोग मुझे अच्छा बच्चा या अच्छी बच्ची कहें। उसको सोशल अप्रूवल जिन चीज़ों की है वो करने में इंटरेस्टेड है वो। इसी सेकंड स्टेज की दूसरी फेज जो है दैट इज अथॉरिटी और सोशल ऑर्डर। इस एज में वो ये देखता है, यानी इस स्टेज पे पहुंचने के बाद वो देखते हैं कानून क्या कहता है। कानून जिस जगह वो रह रहा है उस मुल्क के कवानीन, उस मुआशरे के कवानीन, लॉ क्या कहता है। लॉ जो कहेगा ठीक है वो उसको ठीक समझता है, जो लॉ खराब नहीं। अब उसको थोड़ी सी डेवलपमेंट ये होगी कि उसके अंदर कोई भी काम करने या ना करने में ये ख्वाहिश पीछे रहेगी कि मैं अच्छा बनूं, अच्छा नजर आऊं। अब उसके पीछे ये है कि कानूनन क्या दुरुस्त है। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद करनी चाहिए, ये ठीक बात है। ड्राइविंग उससे पहले आती भी हो फिर भी करनी नहीं है क्योंकि लॉ कहता है कि नहीं करनी। सो अब उसके नज़दीक चीज़ों की जस्टिफिकेशन जो है वो लॉ से जनरेट होती है, अथॉरिटी से, जो भी उसको बनाने वाला है, जैसा कानून उसने बना दिया।
जो सोशल ऑर्डर मुआशरे ने इम्पोज किया हुआ है वो सोशल ऑर्डर के मुताबिक फैसला करता है कि ये चीज़ करना दुरुस्त है या गलत है। इसके बाद जब वो टीन एज में आता है, हमारे पास कॉलेजेस में आता है, स्कूल में आता है, अब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका पहला लेवल है। म्यूचुअल बेनिफिशन, रेसिप्रोकेट करना, मॉरली राइट एंड लीगली राइट आर नॉट ऑलवेज द सेम। अब वो इस चीज़ से निकलने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे इस उम्र में किस तरह के एक्शन होते हैं। एक बच्चा है जिसको पता है कि कानून ये कहता है कि आपने चोरी नहीं करनी, चोरी करने की सज़ा होती है, लेकिन वो समझता है कि मेरे इस दोस्त को बहुत सख्त ज़रूरत है पैसों की आज, तो वो अपने घर से बगैर बताए पैसे निकाल के उसको दे देता है और समझता है कि मैं दुरुस्त किया। क्यों? कि अब वो लॉ के मुताबिक जजमेंट नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि लीगली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, वो ये देखता है कि मॉरली चीज़ें राइट हैं या नहीं है। हर चीज़ जो लीगली करेक्ट होती है ज़रूरी नहीं कि मॉरली भी करेक्ट होती है। सो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को देखना शुरू कर। इसका मतलब है कि जब वो कॉलेज मेरे पास आया तो उसमें ये टेंडेंसी मौजूद है कि वो ऐसे काम भी कर सकता है जिनको वो ज़ाती तौर पे जस्टिफाइड समझता है। एंड वेरी बिकॉज बीइंग नाइव एट दैट एज वो उसकी जस्टिफिकेशंस बनाता है। अब इस एज पे मैं उसकी जो हेल्प कर सकता हूँ मॉरल डेवलपमेंट में, मैं उसकी जस्टिफिकेशंस के दुरुस्त या गलत होने को चैलेंज कर सकता हूँ, उसमें उसको मदद कर सकता हूँ। मसलन वो उसमें ये टेंडेंसी है कि वो कोई जाहिरन कानून से उलट काम करने लगेगा, लेकिन अपने ज़हन में मिसाल के तौर पे इशारा तोड़ेगा, मोटरसाइकिल चला रहा है और आप उसे पूछेंगे, उस वक्त कोई भी नहीं था, सड़क खाली थी, ना राइट से कोई आ रहा था ना लेफ्ट से कोई आ रहा था, मैंने देख लिया था, तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब उसे इस स्टेज पे ये लॉजिक उसका क्यों दुरुस्त नहीं है ये सिखाना मेरा काम है एज ए टीचर। ठीक है ना, ये लॉजिक समझाना कि सड़क खाली थी लेकिन तुम्हें रुकना था क्योंकि तुम्हारा इशारा सुरख था, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, ये तुम्हारी तरह के और लोगों की सेफ्टी के लिए है जो उधर मूव कर रहे थे। आज कोई और नहीं आ रहा था, तुम्हें पता लग गया, लेकिन अगर ये मिस्टेक हो जाती तुमसे, तुम्हें नजर ना आता कोई आ रहा होता, या दूसरी तरफ वाले से आने वाला भी यही सोच ले अगर, तो फिर सोचो क्या होगा। 1-1.5 मिनट सिग्नल पर रुकोगे तो क्या हो जाएगा? डज दिस मेक एनी डिफरेंस? लेकिन ये अपनी, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर समबडी एल्स, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली एज है ना, इसमें मुझे उसको जो false reasons हैं for doing a certain right action as they perceive, उनके बारे में आगाही देनी जरूरी है जी। And then becomes the highest level of moral development, universal principles. अपने जात के फायदे को छोड़ के इंसानियत के फायदे को देख के फैसले करना, ऐसी बातें, ऐसे फैसले भी करना जो जाहिरन आपके खिलाफ जाते हो उस वक्त। तो मैं कहूँगा कि जब वो इस तरह के फैसले करना, मसलन बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ह्यूमन, किसी दिन किसी मुजरिम को सड़क पे लोग मार रहे होंगे तो वो उसके खिलाफ भी बोल पड़े कि ये हमारा डोमेन नहीं है, मुजरिम है, इंसान है, इसको इसके गलत की सजा देना, किस तरीकाकार उसका क्या है, वो कैसे होना चाहिए, वो करने दें। यह नहीं कर सकते हम जैसे हम करते हैं, जो मॉब थिंकिंग है इसको डिनाई करना, वो इस तरह की बेशुमार चीज़ें। सो ये जो आखिरी ग्रीन कलर में 2 चीज़ें हैं, ये वाली, ये हमारा फोकस है जी। इस एज ग्रुप में बच्चा मेरे पास आता है, इफ़ आई कैन अंडरस्टैंड what kind of support he or she needs from my side at this particular stage of development, so it means I understand my student well.
और ये 3 तरह की डेवलपमेंट जो है उसको मैं अगर सिखा पाऊँ तो अब मैंने स्लाइड पे तीनों वो पॉइंट्स इकट्ठे किए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का और सोशल डेवलपमेंट का, साइको सोशल डेवलपमेंट का और मॉरल डेवलपमेंट का। ये तमाम ये समरी है उन चीज़ों की जिस पे मैं, जब मेरे पास स्टूडेंट आता है तो वो अपनी लाइफ की इन स्टेजेस पे होता है, जो मुझे उस पर काम करने की उस वक्त क्या ज़रूरत है, मुझे यहाँ से समझ आता है जी। एंड जितना मैं इसको अच्छा कर सकूँगा, अच्छे तरीके से समझ सकूँगा एज ए टीचर, उतनी मैं अपने स्टूडेंट की ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। मुझे समझ इन पिछली तमाम चीज़ों को, जो तीनों तरह के मैंने आपके उसकी डेवलपमेंट की चीज़ें आपके सामने रखी, इनको अगर मैं एक साइकिल में डालूं, एक जगह कन्वर्ट करूं, तो देखिए स्टूडेंट के टिपिकल इश्यूज क्या होते हैं। सोशल आइडेंटिटी, प्रोफेशनल चॉइस, वर्ल्ड व्यू, पीयर रिलेशन एंड मेकिंग सेंस ऑफ थिंग्स अराउंड देम। यानी ये स्ट्रगल्स हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से हटके अपनी एक सोशल आइडेंटिटी जिससे उसको पहचाना जाए, उसको चूज करना, ये उसका चैलेंज है और मुझे इसमें मदद करनी चाहिए उसको। अपना कैरियर चूज करना, मुझे ज़िंदगी में कौन से प्रोफेशन में किधर को जाना है और उस प्रोफेशन में मैं क्या करना चाहता हूँ, एस्पिरेशंस डेवलप होती हैं। वर्ल्ड व्यू, दुनिया में रहने का तरीका, दुनिया को समझने का और दुनिया में अपनी पोजीशन, अपने रहने का की जस्टिफिकेशन, ये डेवलप कर रहा होता है। राइट रॉन्ग का फैसला कर रहा होता है, मॉरल इमोरल का फैसला कर रहा होता है। वो एक वर्ल्ड व्यू बना रहा होता है अपना, जिसके अंदर उसने रहना है। रिलेशंस कितने होंगे, कहाँ तक रहेंगे, किसकी लिमिट क्या होगी, ये वो फैसला कर रहा होता है। मुझे इसमें मदद करनी चाहिए। दोस्तियाँ क्या होती हैं, पीयर रिलेशंस डेवलप कैसे होते हैं, इसके बारे में वो तयन कर रहा होता है। मुझे उसको सपोर्ट करनी चाहिए, किस तरह के लोग आपके दोस्त होते हैं, हाउ टू मेक जजमेंट अबाउट पीपल हु आर योर फ्रेंड्स एंड हु आर नॉट, एंड मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट ऑल दीज थिंग्स। ये जितनी मैंने जिक्र की, इन तमाम चीज़ों में सेंस डेवलप करना, इनको आपस में इंटरकनेक्ट करके देखना, इनके अंदर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों को अवॉइड करना, इनके अंदर कोहेरेंस डेवलप करना। इन चीज़ों में कोई शख्स जितना इसको बेहतर कर सकेगा, वो उतना अच्छे तरीके से चल सकेगा ज़िंदगी में। सो ये चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस से वो गुजर रहा होता है, और इससे पीछे वो स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में वो आता है मेरे पास, यानी जिस वो अपनी डेवलपमेंट की कौन से स्टेज पे होता है, तब जब मेरे पास आता है, उन स्टेजेस में ये इश्यूज हैं जिनको मैं हैंडल करना चाहता हूँ। और इसको करने का तरीका क्या है मेरे पास, इंगेजिंग देम, जिसको मैं कहता हूँ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग सिर्फ ये नहीं है कि स्टूडेंट एक्टिविटी करता रहेगा और मैं उनके जरिए उनको हैंड्स ऑन काम कराता जाऊंगा तो वो लर्नर सेंटर्ड हो जाएगा। लर्नर सेंटर्ड का मतलब है जब मैं लर्नर की इन तीनों स्टेट्स को समझता हूँ जो पीछे मैंने पढ़ी हैं, और उन स्टेट्स के मुताबिक उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं लर्नर सेंटर्ड हूँ। टीचर सेंटर्ड से अपोजिट इसलिए है, टीचर सेंटर्ड में होता है कि मैं अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज को समझते हुए उसके लिए फैसला करता हूँ कि वो क्या करे। यहाँ मैं ये नहीं करता, यहाँ मैं उसकी स्टेट को समझता हूँ और उसके मुताबिक सपोर्ट करता हूँ। सो एंगेजिंग देम, आगे नहीं नीचे जो उसमें आ रहा है 2 मिनट 4 मिनट स्टार्ट कर। स्टूडेंट्स को ये सिखाना कि वो अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सोचना पड़ेगा, ये सारी बातें पीछे कर चुका हूँ। आर्गुमेंट्स को एनालाइज कैसे करना है, फ्रेंडशिप बनानी है लोगों के साथ, कोई फिनोमेना समझना है, कोई साइंस का प्रोसेस समझना है, तो आपने लोगों की गुफ्तगू सुन के उसको कैसे एनालाइज करना है अपने पर्पस के लिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एविडेंस सामने आते हैं तो कैसे एवेल्युएट किए जाते हैं कि एविडेंस दुरुस्त है कि नहीं है। और देखिए ये बहुत, इस चीज़ का बहुत कमी है हमारे स्टूडेंट्स में भी, हमने कभी सिखाया नहीं है। आप सोशल मीडिया पे कोई फजूल चीज़ रख दें, लोग बगैर किसी तरद्दुद के कि ये दुरुस्त है कि गलत है, उसके आगे कमेंट्स देने शुरू कर देंगे।
या उसको आगे पास ऑन करना शुरू कर देंगे। उनको चीज़ों को एट पार देखना नहीं आता, एविडेंसेस को एवेल्युएट करना नहीं आता, जो कुछ मिलता है दुरुस्त समझ लेते हैं, किसी की गुफ्तगू को एनालाइज करना नहीं आता, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो एनालाइज करना नहीं आता। ये मुझे उनको सिखाना है, स्टूडेंट्स को ये सिखाना कि जो कुछ मैं जिंदगी में करता हूँ, देयर नीड्स टू बी अ टाइम वेयर आई शुड सिट बैक एंड थिंक अबाउट इट वेदर आई एम डूइंग इट राइट और रॉन्ग। उनको ये एहसास दिलाना कि लर्निंग क्लासरूम में टीचर का जॉब नहीं है, टीचर उनको सिर्फ फैसिलिटेट कर सकता है, लर्निंग उनको खुद से करनी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। सबसे मिल के काम कैसे करना है। एक अकेला आदमी, अकेला इंसान मुआशरे में बहुत लिमिटेड चीजें कर सकता है। अगर आपको फायदा उठाना है और आप चाहते हैं लोगों से आप फायदा उठाएं और लोग आपसे फायदा उठाएं, तो व्हाट काइंड ऑफ commitments you have to make to the people around you? How should you support them so that in return you can have their support? Collaborations, negotiation, इस तरह की skills जो हैं वो उसको सिखानी चाहिए। So ये मेरी टीचिंग का पार्ट बनना चाहिए। This is what actually I aim to get out of my understanding of my learner। उससे अंडरस्टैंड कर लूँ तो फिर ये काम करने में, मुझे डिज़ाइन करने में हेल्प मिलती है। मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ जैसे उनको चाहिए। सो आई विल स्टॉप हियर जी, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस सो प्लीज यू वेलकम। आप बताइए।